विकास परिषद की ओर से रानीगंज बस स्टैंड पर एक वाटर कूलर लगाई गई, जिसका उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा के क्षेत्र में रानीगंज वासियों का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग योजना बनाते हैं, उसके पहले ही यहाँ के लोग उस योजना को क्रियान्वित कर देते हैं। ऐसा माहौल हर एक शहर में होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सोशल वेलफेयर योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे प्रतिष्ठानों के दैनिक मजदूर कर्मी सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें प्रावधान है कि उनको पीएफ ग्रेच्युटी जैसी सुविधा मिले। इसके लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत जल्द ही एक शिविर लगाएगी। मुख्य दाता भारत विकास परिषद के सदस्य और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि ऐसे कामों के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को शुद्ध जल मिलेगा और इसका लाभ हमेशा मिलता रहेगा। इस पर भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर समाज सेवी आरपी खेतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, पूर्व अध्यक्ष चैम्बर के विजय खेतान, पवन और संजय भादोरिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो ओनारा आसानसोल शिल्पांचलेर এবং রানীগঞ্জ শহরের মানুষের কথা বারবার ভাবেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন এবং চেম্বারের কাছেও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তারা এই অঞ্চলের কথা ভেবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেন, মানুষের উপকারের কাজগুলো করেন, মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন, যেটা সরকারের উচিত সেই কাজটা ওনারাই করেন। সেই জন্য ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আজকের দিনটা বড় সুন্দর দিন, ফলহারিণী কালী পুজো। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এই দিন পুজোর মাধ্যমে নতুন এক দিক দেখিয়েছিলেন, ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্যেখান দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে আহ্বান করে সকল দুঃখ দুর্দশা করতে আজকের এই সুন্দর দিনে এই ওয়াটার কুলার মেশিনটা বসানোর মধ্যেখান দিয়ে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা যেন আমার এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে দূর করে এবং মা শারদার যে প্রতিকৃতি, মা শারদার যে ইচ্ছা যে সকলের মধ্যে যেন সুখে শান্তিতে সকলে থাকতে পারে, সেই পরিকল্পনা যেন বাস্তবায়িত হয়। তার জন্য রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স আছে, রানীগঞ্জের বিশেষভাবে রাম অবতার বাবুর পরিবাররা রয়েছে, তাদের কাছেও আমি সঞ্জয় এবং আমাদের প্রদীপের কাছে আমি বিশেষভাবে প্রকাশ করি। ওরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে যার বিষয়ে এই যে গ্যাদারিং আছে তার কাছে বলা উচিত নয়, কারণ হাড়ে হাড়ে সবাই চেনে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ওনার ক্যারেক্টারের বিষয়ে সবাই জানে, উনি কী ধরনের মানুষ। বাস আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা করি, এইটুকু বলবো, মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি আমাদের অমরদাকে, আমাদের আপন অমরদাকে। তিনি আমাদের যে কোনো ছোটোর চেয়ে ছোটো অনুষ্ঠানে হয়েছে হাজির হয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন, উৎসাহিত করেন। তাই আজকে এই যে মেশিন আছে আমাদের ঠান্ডা জলের মেশিন, যেটা রানীগঞ্জের সামাজিক জগতের পুরোধা স্বর্গীয় রামতার বাবুর, তিনি সবসময় দান দিতেই চলেছিলেন, তার স্মৃতিতে একটা ভারত বিকাশ পরিষদের তরফ থেকে আমরা এটা এখানে আজকে ইনস্টল করেছি। তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান শ্রী অমরনাথ দা এসছেন, আমরা ওনার কাছে অনুগৃহীত। আমরা ওনাকে এইটুকু প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস দিতে পারি যে ভারত বিকাশ পরিষদের তরফ থেকে এই যে ধারাবাহিকতা আছে সামাজিক কাজে ভালো কাজ করা, তাতে আমরা করতে থাকব। আপনার যদি কোনো অনুশংসা হয়, আপনার যদি কোনো নির্দেশ হয়, সেও আমাদেরকে দেবেন, তাহলে আমরা আরও হয়তো ভালো কাজ করতে পারবো। সবসময় মানুষের মাথায় আসে না, যে কোনো জায়গায় ভালো জায়গায় কাজ করতে গেলে একটু সিনিয়র লোক যদি মাথার উপরে থাকেন তাহলে একটু আমাদের আরও, এমনি যদি একটু পিছনে যাব তাহলে তো বিশাল বিশাল কাজ আমাদের ভারত বিকাশ পরিষদ তরফ থেকে ওই সব হ্যান্ডিক্যাম্প ক্যাম্প, মানে স্টেট লেভেলের হ্যান্ডিক্যাম্প ক্যাম্প আমরা কোটাই করেছি। তার পরবর্তীকালে বহুত কাজ হয়েছে, এরকম কোনো সংস্থা নেই, এনজিও নেই যারা উপকৃত নয় ভারত বিকাশ পরিষদের মাধ্যমে। ভবিষ্যতেও আমরা সবচেয়ে আগেও করব, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। আপনার সাথে থাকবো, আশা করি আপনি আমাদেরকে সেভাবেই গাইড করতে থাকবেন। সবাইকে আমার विकास परिषद की ओर से मतलब कोल्ड चिल मतलब जो मशीन वाटर मशीन कहाँ पे लगाया गया, किसका मतलब स्मृति में, मेमोरी में? आज भारत विकास परिषद की तरफ से
रानीगंज ब्रांच भारत विकास परिषद की तरफ से हम लोगों ने रानीगंज बस स्टैंड में एक कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर मशीन लगाई है। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय रामोत्तर बाजरिया की स्मृति में हम लोगों ने ये डोनेट किया है और रानीगंज बस स्टैंड में लगाया गया है। रानीगंज बस स्टैंड में हज़ारों लोग बस से इस इलाके में आना जाना करते हैं, जिससे उनको पानी पीने के पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये ठंडे पानी की मशीन लगाने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज ये मशीन लगाई है, जिसका उद्घाटन माननीय चेयरमैन आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के माननीय श्री अमरनाथ चटर्जी आज आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आपका नाम है भारत विकास परिषद के? मैं प्रदीप बाजोरिया, अध्यक्ष भारत विकास परिषद रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत घाटी गली के सोने चांदी की गुणवत्ता जांचने वाले लैब प्रकाश लैबोरेटरी के पीछे की खिड़की के ग्रिल को काटकर चोरों ने 800 ग्राम सोना और 10 किलो से ज्यादा चांदी के गहने चुरा कर फरार हो गए हैं, जिसका अनुमानित कीमत 25 लाख बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर आसनसोल दक्षिण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद आसनसोल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अब मामले की तहकीकात कर रही है। दुकान के मालिक संजय ने बताया कि शनिवार की रात यह लोग दुकान बंद कर चले गए थे। हमारा दुकान में रात में चोरी हुआ है। रात में हम लोग 8 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। इसके बाद सुबह जब हम लोग 8:30 बजे दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान का तो शटर में और कैप्सूल में कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे लॉक था वैसे ही था, लेकिन साइड में गली था, वो गली से खिड़की वाला सब रड काट के चोर अंदर घुस के अलमारी का ताला तोड़ के सोना और चांदी लेके गए और पैसा। कितना पैसा था? 28,000 रुपये पैसा कैश था और सोना कितना? 800 ग्राम के लगभग सोना था और 10 किलो के लगभग चांदी था। कुल कीमत कितना आ रहा है? कुल कीमत मोटामोटी 25 लाख के लगभग था। सीसीटीवी में कुछ देखा गया? नहीं, सीसीटीवी हमारा उधर वाला कैमरा ख़राब हुआ है, इसलिए रात में हम लोग सीसीटीवी बंद करके जाते थे कुछ दिन पहले से। पुलिस आई है? पुलिस आई है, पुलिस अपना इन्विटेशन कर रही है। आप लोग कंप्लेंट लॉन्च किए? हाँ, कंप्लेंट हम लोग FIR कर रही है। आपका नाम? संजय सिंह सेंटर। लेकिन दुकान खोला तो देखा कि खिड़की का ग्रिल काटा हुआ है, जिसके माध्यम से चोर घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर करीब 800 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी एवं 28,000 नगद समेत 25 लाख का सामान चुराकर फरार हो गए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के विधायिका अग्निमित्रा पाल रविवार को श्री श्री फलहारिणी काली पूजा के अवसर पर आसनसोल की मां घाघर बुढ़ी मंदिर प्रांगण में पहुंची। वहां उन्होंने मां घाघर बुढ़ी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर यहां भव्य मेले का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि श्री श्री फलहारिणी काली पूजा के अवसर पर मां घाघर बुढ़ी मंदिर प्रांगण में आकर उनको आंतरिक खुशी हो रही है। विधायिका ने बताया कि इस पूजा के अवसर पर कुमारी पूजा का भी आयोजन किया गया है, जहां एक साथ 10 कुमारियों की पूजा की जा रही है, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। आज के এখানে ফলারিনী কালী পুজো খুব শুভ দিন এবং মা ঘাগরবুড়ির মন্দিরে খুব ঘটা করে পুজো হয়। এখন সবে কুমারী পুজো শুরু হয়েছে। একটা নতুন জিনিস দেখলাম, 10 জন কুমারী বসে তাদেরকে পুজো করা হচ্ছে। সেজন্য আজকে মায়ের আশীর্বাদ নিলাম এবং সবাই ভালো থাকুক, মায়ের আশীর্বাদ সবার উপর পড়ুক, এটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुजरात फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट हैक कर फर्जी तरीके से छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आरोप में अहमदाबाद जिले के साइबर थाना की पुलिस टीम ने काकसा के जयदेव इलाके से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रविवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान आरोपियों को 4 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में उत्तर 24 परगना के बनग्राम निवासी सुधाकर घोष, कोलकाता के बिराटी इलाका निवासी अतनु पात्रा शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ अहमदाबाद साइबर थाने में केस संख्या 130/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात फार्मेसी काउंसिल में छात्रों को बी फार्मा सहित मेडिकल के विभिन्न कोर्स के लिए
क्वालिफिकेशन के मुताबिक छात्रों का ऑनलाइन दाखिला किया जाता है, जिसमें पास होकर छात्र मेडिकल के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री हासिल करते हैं। आरोप है कि गुजरात फार्मेसी काउंसिल में पिछले कुछ वर्षों से छात्रों को फर्जी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए गुजरात फार्मेसी काउंसिल ने वर्ष 2020 में अहमदाबाद साइबर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज होते ही साइबर थाने की टीम ने मामले की जांच शुरू की। मामले की जांच करते हुए साइबर इंस्पेक्टर MS देसाई के नेतृत्व में 9 अधिकारियों का दल शनिवार देर रात दुर्गापुर के काकसा इलाके से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। श्री देसाई ने बताया कि मेडिकल के छात्रों को फर्जी तरीके से काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक स्कैंडल सक्रिय है, जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं। इसी के लिए ये छापेमारी की गई है। हमारे वहाँ पर गुजरात फार्मेसी काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है वो फेक बना था और उसका रजिस्ट्रेशन गुजरात फार्मेसी काउंसिल में हो गया था। और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हैकर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो उसका वेबसाइट हैक करके गुजराती फार्मेसी काउंसिल का और उसके आधार पे रजिस्ट्रेशन करते थे। तो अगर किसी को फेक सर्टिफिकेट बनाया और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो ये हैकर ये पूरा सॉफ्टवेयर के आधार पे ये लोग उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे, जो पूरा फेक था, पूरा स्कैंडल था, पूरे इंडिया लेवल पे ये चल रहा है। कितना पैसा लेता था ये लोग? कितना पैसा? एक डिग्री का ये लोग 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख जैसा क्वालिफिकेशन जैसी डिग्री। कितना दिन से चल रहा था ये? तो बहुत टाइम से चल रहा था। अभी 1.5 साल से आरोपी को हम ढूंढ रहे थे। आज ये आरोपी का जो कंप्लेनर कौन था? कंप्लेन था वो गुजरात फार्मेसी काउंसिल, उसका जो रजिस्ट्रार था उसने कंप्लेन किया। कितना आदमी अरेस्ट हुए अभी तक? अभी तक पहले 5 किया था, अभी ये 2 हुआ। दिल्ली का एक आदमी था। कैसे पकड़े? कैसे बेंगल का 2 आदमी। इस क्राइम को कैसे पकड़े आप लोग? कहाँ से पकड़े हैं? वो टेक्निकली एनालिसिस करके। हाँ, तो कहाँ दुर्गापुर में आके कितना दिन टाइम लगा? काफी दिन से वो बंगाल में घूम रहे थे, फिर लोकल द्वारा यहाँ पर जो सर पकड़ा है उसका नाम क्या है? अतुल पात्रा और सुल्तानकर घोष। सर इसका जो कहाँ से पता है? ये दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के हाथ से पता। तो काकसा पुलिस। बोले सर ये लोग जो साइबर क्राइम करता है इसका तो बंगाल इसका बारे में कितना तो इन्वॉल्व है? बंगाल सरकार इसका बारे में कितना आप लोग? सरकार तो नहीं बोल सकते, ये बंदे जो क्राइम करते हैं वही करते हैं। इसका सर मास्टरमाइंड का हमारा बंगाल का ही है क्या? अभी ये जो आरोपी पकड़ा है, बाद में देखेंगे इन्वेस्टिगेशन आगे कौन है, उसके ऊपर भी निकलता है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है या फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा। बोले कि ये लोग जो आरोप कर रहे हैं आप लोग के ऊपर, बोले कि 20 साल का केस है। नहीं, 2020 का 2020 साल का केस है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग की तरफ से बहुत मोटी रकम डिमांड किया गया। वो तो खाली वो आक्षेप तो कौन नहीं करता, पुलिस आक्षेप तो करता ही रहेगा वो सब। सर आपका नाम सर? वो पकड़ा गया सब आक्षेप करेगा। आपका शुभ नाम सर? पुलिस इंस्पेक्टर देसाई। कितना दिन तानवीर जिले में दिया? 4 दिन। दुर्गापुर से निवाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा लायंस क्लब का 47वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी रविवार को बांकुड़ा राधा भवन धर्मशाला में संपन्न हुआ। लायंस क्लब के द्वारा नई कमेटी गठित हुई, जहां नए अध्यक्ष के रूप में अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका एवं कोषाध्यक्ष नीरजा शराफ को बनाया गया है। रविवार को एक विशेष इंस्टॉलेशन सेरेमनी के मध्य PST को कार्यभार सौंपा गया। मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया, लायंस मल्टीपल काउंसिलर चेयरपर्सन लेखा शर्मा, विधायी अध्यक्ष अशोक जालान, विधायी सचिव अभिषेक अग्रवाल, विधायी कोषाध्यक्ष प्रेम शराफ के अलावा अन्य सदस्य गण उपस्थित रहे। सेरेमनी का शुभारंभ प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से किया गया। विधायी सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि नई टीम आगामी 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगी। कार्यक्रम के दौरान लायन न्यूज मैगजीन का विमोचन भी किया गया।
I request our lady members to present the sapling to our distinguished guest on the dais. बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के भारती रोड इलाके में एक साथ 2 आवासों में चोरी की घटना से लोगों में डर और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। रविवार सूचना पाकर बी जोन फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि भारती 9 नंबर स्ट्रीट के 19 नंबर और 21 नंबर आवास में बीते रात चोरों ने धावा बोल दिया और खिड़की में लगे शीशे को तोड़कर लंबे बांस में नुकीले लोहे का सामान बांधकर घर के भीतर मंदिर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति पर लगे सोने के गहने की चोरी कर ली। घर मालकिन तान्या पाल ने बताया कि चोरों ने मूर्ति में लगे सोने के चैन, नाक कान की बालियों की चोरी की है। कुल मिलाकर करीबन 2.5 भरी सोने की चोरी हुई है। वहीं इसके बाद चोरों ने 21 नंबर आवास में रहने वाली रेखा भट्टाचार्य के घर की खुली खिड़की से लंबे बांस के सहायता से 2 बैग को खींचकर बाहर निकाल दिया। रेखा भट्टाचार्य ने बताया कि तकरीबन 3 बजे अचानक आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। उसी दौरान चोर को देखकर शोर मचाने लगी, जिससे सभी चोर बांस फेंककर फरार हो गए। बैग में नकदी समेत जरूरी कागजात थे। चोरों ने खिड़की के पास टेबल पर रखे मोबाइल खींचने का भी कोशिश की, लेकिन मेरी नींद खुलने की वजह से वो मोबाइल ले जाने में असफल रहे। घटना की सूचना 100 डायल कर पुलिस को दी गई। उन्होंने आगे कहा कि रविवार सुबह बी जोन फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पहुंची और पूछताछ कर चली गई। इलाके में चोरी की घटना से लोगों में दहशत व्याप्त है। इलाके में स्ट्रीट लाइट खराब होने से पूरा इलाका अंधकार में है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। इस बारे में पुलिस ने बताया कि चोरी की शिकायत मिली है, जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही चोर हमारे गिरफ्त में होंगे। বলছি কি হয়েছে দিদি একটু বলুন। ওই আমাদের বাড়িতে যে ঠাকুর ঘর আছে, ঠাকুর বাড়ির মধ্যে জানলা থেকে লক্ষ্মী প্রতিমার মধ্যে সোনার গলার মাথার স্মৃতি আর নথনি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, থানায় এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল। আপনারা লিখিত কমপ্লেন দিয়েছেন? 4টার সময় যেতে বলেছে। 4টার সময় যেতে বলেছে। আপনার নাম? তানিয়া পাল। হ্যাঁ, লক্ষ্মীকান্ত। ফটো তুলে নিয়ে গেছে ওরা। কি ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল? ওই তো লাগার সময় বাঁধা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, কবে আপনার জানলেন কবে? আরে আজকে ভোরবেলা 4:30টার সময়। 4:30টার সময় আপনি কি দেখলেন? 4:30টার সময় আমি দেখলাম, আমি বিছানায় শুয়ে আছি। হঠাৎ করে আমার মনে হলো যেন 4:30টায় আমি ঘুম থেকে মোটামুটি উঠেই যাই, কারণ যোগা ফোগা করি। তো আমি পাশ ফিরেছি যখন, তখন দেখছি এরকম করে একটা হাতের মতো বেরোচ্ছে। আমি হয়তো মানে বেড়াল তো অনেক সময় ঢুকে থাকে, তাহলে বেড়াল বেরোচ্ছে। হঠাৎ করে বিছানার থেকে উঠে দেখছি একটা মূর্তিমান। আমি যে কেড়ে 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 চোর 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 যেই চেঁচিয়েছে, ওর সঙ্গে সঙ্গে ওইখান থেকে মাঠ চম্পট। এবার বেরিয়ে আমি চোর 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 করে চিৎকার করছে। 100 ডায়ালে ফোন করছে, তারা তো কেউ ফোন তুলছে না। সে যাই হোক, তাদের ব্যবস্থা তারা করছে। তখন আমি ওইদিকে দরজা খুলে যখন বেরিয়েছি, কোন দিকে দিয়ে গেল সেটা আর বুঝতে পারলাম না। বলছি কি কি আপনার মানে গেছে চুরি? চুরি গেছে বলতে কিছু আমার ব্যাগের মধ্যে ডকুমেন্টস ছিল, সেগুলো সব নিয়ে গেছে। হ্যান্ড ব্যাগটা, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, তারপরে হ্যান্ড ব্যাগটাকে জানলার সামনে আঁকছি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে গেছে। মোবাইলটাকে টেনে বের করার চেষ্টা করেছে। একটা নিচে আবার কাপড় পেতেছে। আবার নাইটি ছিল ওখান থেকে নিয়ে এসে নাইটিটাকে পেতেছে। নাইটির উপরে মোবাইলটাকে ফেলে ওখান থেকে টানার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেটা নিতে পারেনি। মোবাইলটা নিতে পারেনি, কিন্তু ব্যাগগুলোকে টেনে টেনে সামনে নিয়ে গেছে। এবার জানলাটা ভাঙতেও পারতো ইচ্ছা করলে, হয়তো ওদের কাছে টাইম ছিল না, ভোর হয়ে এসেছিল বলে। সিকিউরিটি কি আমাদের? আপনার নাম কি? আমার নাম রেখা ভট্টাচার্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মন
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांकुड़ा लायंस नीत रवत दंत अस्पताल के प्रयास से एवं लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा वेलफेयर ट्रस्ट, बांकुड़ा धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट एवं साइट सेवर्स के सहयोग से बांकुड़ा धर्मशाला के प्रांगण में विजन सेंटर का उद्घाटन हुआ। सेंटर का उद्घाटन मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लायन लेखा शर्मा द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित लायंस क्लब के पोस्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया ने बताया कि 20 वर्षों से लायंस क्लब सेवा प्रदान कर रही है। रविवार को विजन सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जो कि प्रत्येक दिन 10 से 2 बजे तक खुला रहेगा। इससे कई लोगों को सुविधा मिलेगी। मौके पर बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जालान, सचिव अभिषेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रेम शराफ एवं लायंस सदस्यों में अनुमिता चैटर्जी, प्रीति गोयंका, नरेंद्र शर्मा, दिनेश सराफ, अनिमेश चौधरी, राजकुमार सुरेका, विप्रदास मिध्या समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। उद्घाटन के दिन प्रथम 50 लोगों को निःशुल्क चश्मा देने की व्यवस्था भी की गई। आज क्या प्रोग्राम लोग बांकुड़ा लायंस आई हॉस्पिटल पिछले 20 सालों से बांकुड़ा की सेवा करता आया है। उसी में नया संयोजन आज हम कर रहे हैं, विजन सेंटर की ओपनिंग। ये हो रहा है साइट सेवर्स इंडिया वर्ल्ड के एक इंटरनेशनल NGO है, उनके साथ कोलैबोरेशन से और बांकुड़ा धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की कोलैबोरेशन से आज शुरू कर रहे हैं।
यहाँ हर रोज़ 10 से 2 बजे तक आँखों की परीक्षा की जाएगी और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको हमारे आई हॉस्पिटल रेफ़र किया जाएगा और बुधवार को बंद रहेगा, बाकी हर दिन ये चालू रहेगा। लोग कितना इसके साथ उपकृत होंगे इससे? जी, कितने लोग लाभान्वित होंगे ऐसे? हमारी इच्छा है कि कम से कम रोज़ 20 पेशेंट हो, लेकिन ऐसी जगह में हम खोल रहे हैं, यहाँ हमको लगता है 20 से ज़्यादा रोज़ यहाँ पे आएंगे लोग। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के वर्ष 1987-88 बैच के छात्रों द्वारा रविवार को कॉलेज के सभागार में पुनः मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस पुनर्मिलन समारोह का उद्घाटन रानीगंज के विधायक अड्डा के चेयरमैन तथा कॉलेज प्रबंधकीय कमेटी के अध्यक्ष तापस बैनर्जी ने किया। इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन एवं केक काटा गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अतीत को याद करना और उसे स्मरण करना जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कार्यक्रम ने मुझे भी छात्र जीवन के दिनों का स्मरण कराया है। विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यापक जगन्नाथ चक्रवर्ती ने भी इस विषय पर कई बातें कही। इस अवसर पर पूर्व छात्र आरपी खैतान, ओम प्रकाश बाजोड़िया ने भी अपने वक्तव्य रखे एवं इस मौके पर पूर्व छात्र स्वपन कर, मनोज बाजोड़िया, शिव कुमार शराफ, राजकुमार अग्रवाल, सुतापा पाल ने 87-88 दरमियान के शिक्षकों के शिक्षा देने की प्रक्रिया का जहां जिक्र किया, वहीं उस वक्त के कॉलेज में बिताए गए पलों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन अनुज मुखर्जी ने किया। আপনাদের কলেজ জীবনের কথা বলছি, তার সঙ্গে আমি আমার রিলেট করতে পারছি আমার কলেজ জীবনের কথা। স্কুলে প্রচুর বই নিয়ে যেতে হতো, প্রথম আনন্দ উপভোগ করলাম যে একটা খাতা নিয়ে কলেজ যাওয়া যায়। সেই মসজিদ বাড়ির মুখ থেকে চেপে বিক্রি করে এসে নামতাম। সেই কলেজের উন্মুক্ত পরিবেশ, দুটো পিরিয়ড হয়, একটা পিরিয়ড অফ, কি আনন্দ, সারাক্ষণ ক্লাস করতে হয় না। আর অন্য ব্যাপারে অনাবির আনন্দ, কত বন্ধুত্ব, কত গল্প, কত ক্যান্টিনে আড্ডা। তো সেইটা আপনারা আজকে ফিরিয়ে আনছেন নিজেদের মধ্যে। মানুষ সবসময় অতীতে ফিরে যেতে চায়, তার সেই আনন্দ আমরা মুহূর্তে ফিরে যেতে চায়। আজকে তো আমাদের প্রত্যেকের একটা ব্যস্ত জীবন আমরা নিয়ে চলেছি, প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, কর্তব্য করতেই হবে, দায়িত্ব নিতেই হবে। পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি কর্তব্য, সেইটা পালন করতে হয়। তখন সেটা তো ছিল না, তখন আপনার দায়িত্ব আপনার অভিভাবক, আপনার কলেজের দায়িত্ব আপনার শিক্ষক, দেখছেন আপনি ক্লাস মাটি দিচ্ছেন কিনা। এখন দেখেন কিনা আমি জানি না, মনিবাবু দেখতেন যতদিন ক্লাস না আসতাম, প্রায় 3 দিন তুমি কোথায় ছিলে, এই তোমার বাড়িটা ফোন করবো। সত্য বলে বাবু ঘেরাও কি জানতাম না ভাই, জিজ্ঞেস হয়েছিলাম, কিন্তু যেটা যখন উনি টাকা দেন তখন একে অন্যকে ঠেলতাম, তুই বল তুই বল। একজন প্রবাদপ্রতিম মানুষ ছিলেন, সত্যকারী প্রবাদের প্রিন্সিপাল হয়েছেন। তার আগে আমার সৌভাগ্য যে আমার দাদামশাই কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছেন কিছুদিনের জন্য। আমার সবসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি যে কোনো কারণেও দুর্বল হয়ে পড়ি। কলেজের প্রিন্সিপাল ভাবলে আমার দাদুর চেহারা মনে পড়ে। দাদু আসানসোল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বিধানচন্দ্র কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন দাদু। আমি সেটাই সেই পরিচয় অত্যন্ত গর্ববোধ করি আমার বিধায়ক পরিচয়ের ছাড়া। কেউ যখন বলে তুমি ব্যানার্জি সাহেবের নাতি না, তার যারা অনেক ছাত্র ছিল, পুরো এখন দু একজন ছাত্র আছে বর্তমানীতে, মানে বয়স্ক ছাত্র কলেজের প্রফেসর করেছেন, তারা দাদুর ছাত্র ছিলেন, যতীনবাবু, অভয়বাবু আর অনেকে। তারা বলতেন তুমি তো প্রিন্সিপাল সাহেবের নাতি, তুমি এত চিৎকার করো কেন। তো যাক এইসব আজকাল মনে টনে পড়ে আর কি, আমার খুব ভালো লাগে। তাই কারণে আমাকে কলেজে আমি এলাম আর কি, আমার নিজের দিকটাও মনে করতে পারলাম। তো আমি খুব একসঙ্গে আমার ভালোও লাগছে, একসঙ্গে আমি নিজের ঈর্ষান্বিতও হচ্ছি এবং সেটা ঈশ্বরের কারণে আমিও তো দায়িত্ব নিতে পারতাম। আমি তো কমার্সের স্টুডেন্ট, আমি তো বিকমের স্টুডেন্ট, আমি তো আমার কলেজে রিউনিয়ন করার জন্য এগিয়ে এলাম না। তো ভাই যারা এগিয়ে এসছেন তারা একটা মহৎ কাজ করেছেন। শুনছি গোয়া থেকে কেউ এসছেন, তালচে থেকে এক দিদি এসছেন। এই যে একটা টান, এই টানটা কিন্তু উনি এখন উনি মনের মধ্যে লালন পালন করেন সেই কলেজের জীবনগুলো। যখন উনি নিশ্চয়ই আহ্বান পেয়েছেন, সেই স্মৃতিটা তার মধ্যে ভেসে উঠেছে। কলেজের ক্যান্টিন, কলেজের আড্ডা, কলেজের ক্লাস ফাঁকি গিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া, সেইগুলো তাদের মধ্যেও ভেসে এসছে। তাই তারা সেই স্মৃতিটা রোমাঞ্চন করার জন্য তারা আজকে এখানে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
दुर्गापुर शहर के इस्पात नगर स्थित बेनाचिट्टी बाजार इलाके से तृणमूल श्रमिक यूनियन की ओर से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महारैली निकाली गई। ये रैली अकबर रोड फुटबॉल मैदान से शुरू की गई, जो 5 माथा मोड़ होते हुए बेनाचिट्टी बाजार होकर भिरंगी मोड़ पहुंची। महारैली में शहर के विभिन्न इलाकों से काफी संख्या में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली में मुख्य तौर से तृणमूल यूनियन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र के विधायक प्रदीप मजूमदार, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, यूनियन देवव्रत साई सहित कई श्रमिक नेता मौजूद थे। श्री घटक ने बताया कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण समाज का हर नागरिक त्रस्त है। भाजपा केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পাবেন। তাই আজকে যে মিছিল আমরা এখানে করলাম, বিশেষ করে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দুর্গাপুরে পদার্পণ করবেন এবং তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এর থেকে আর ভালো উপায় ছিল না যে নিখিল নায়কের নেতৃত্বে এত বড় একটা মিছিল আমরা আজকে এখানে করলাম। আমরা আশা করব আগামী দিনে দুর্গাপুরের সকলে একত্রিত হয়ে আমরা দুর্গাপুরের চেহারা পাল্টে দেব। যেভাবে তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন আজকে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করছে, যেভাবে তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন প্রত্যেকটা কোথায় কোন শ্রমিকের কি অসুবিধা হচ্ছে তার উপরে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, সেই দিকে আমরা নজর দিচ্ছি এবং আগামী দিনে আমরা দুর্গাপুরের শিল্প নগরীকে আরো ভালোভাবে যাতে এখানে শিল্প হয়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।